Good afternoon, class. So, till now we have discussed about semigroup, monoid, then after group, abelian group, and cyclic group. Okay. Now we are going to discuss the next type of algebraic system. Till now, whatever algebraic systems we have discussed, that or all the previous algebraic systems are consisting of single binary operation, that is one binary operation. Now we are going to discuss the algebraic system having two binary operations. ठीक है, जिसका एक एग्जांपल है रिंग. तो रिंग इज एन algebraic system having two binary operations where the first binary operation is generally addition and the second binary operation is multiplication. So if we are, as here you can look at here, the first binary operation is addition. It is not compulsory that it is simple addition, it can be any additive operation. In the same way, the second binary operation is multiplication. It means it can be any multiplicative operation. यानी कि वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या वो मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है. ऐसे ही वो नॉर्मल एडिशन भी हो सकता है या फिर वो मॉडुलस एडिशन भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस आर इज कॉल्ड टू बी एज रिंग. यहाँ पे आर क्या है? दिस इज अ सेट, दैट इज नॉन एम्पटी सेट. यहाँ पे नाम हमने आर रख दिया सो दैट वी कैन रिलेट विथ रिंग. ओके, यू कैन से एनी सेट एस where this S or you can say R. R is a ring if these three conditions are met out. जिसमें पहली कंडीशन है R plus is an abelian group. It means the given set is an abelian group with respect to first binary operation. ठीक है, जो भी आप अल्जेब्रिक सिस्टम ले रहे हो उस अल्जेब्रिक सिस्टम का जो सेट है वो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. एंड एज यू ऑल नो व्हाट इज अबेलियन ग्रुप, in order to find out whether it is abelian group we will verify 5 properties, and that is closure, associative, identity element, inverse element, and commutative property. So we have to check for these 5 conditions or 5 properties for this first condition in order to be R is an abelian group with respect to first binary operation. The second condition is R dot is a semigroup, yani the given set with second binary operation must be a semigroup. And as you know, semigroup is an algebraic system which follows two properties, that is closure and associative. तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन के लिए हमने 5 प्रॉपर्टी चेक किए फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ. दूसरी कंडीशन के लिए हमने 2 प्रॉपर्टी चेक किए सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ. और तीसरा कंडीशन है कि जो सेकेंड वाला बाइनरी ऑपरेशन है वो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए. दिस वन, a dot b plus c is equals to a dot b plus a dot c. This is called left distribution. Or b plus c dot a equals to b dot a plus c dot a. This is called right distribution. So left distributive law and right distributive law. This must be true for any 3 numbers or any 3 elements a, b and c of the set R. So any algebraic system R plus dot R is the set, plus is the first binary operation, and dot is the second binary operation, will be a ring if it satisfy these 3 criteria. फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप,
और सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिंग। इज इट क्लियर? तो वी आर हियर, वी आर चेकिंग फॉर टोटल 8 प्रॉपर्टीज। 5 फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के लिए, 2 सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए और 1 डिस्ट्रीब्यूटिव। तो 5 + 2 + 1 that is total 8 properties we are verifying for any algebraic system R plus dot to be a ring. Clear? Yes, any queries you can ask, any one of you. So therefore it is represented by R plus dot. Now these rings are of 3 type. 3 वेरिएशन की डिस्कस करेंगे हम, 3 वेरिएंट्स का बात करें यहाँ पे। पहला है आपका रिंग विथ यूनिटी, या पहला हम ले रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग। सेकेंड वन इज रिंग विथ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम रिंग विथ यूनिटी बोलते हैं। और तीसरा टाइप है इसका रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ रिंग। फर्स्ट कम्यूटेटिव रिंग, देन रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो रिंग विथ यूनिटी या रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। और तीसरा टाइप है रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं रिंग विथ यूनिटी को या रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो जैसा मैंने बताया कि हम सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए केवल 2 प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव, बिकॉज वी आर सेइंग इट इज अ सेमी ग्रुप विथ सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर कोई रिंग में ये थर्ड प्रॉपर्टी भी है, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो देन दैट रिंग इज कॉल्ड टू बी एज रिंग विथ यूनिटी या रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, रिंग के लिए सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन में हम केवल क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। अगर इसके साथ हम एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें कि सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो देन दैट रिंग इज कॉल्ड टू बी एज रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, तो अब हम सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए 3 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग। तो एनी रिंग आर इज कॉल्ड टू बी एज कम्यूटेटिव व्हेन एवर इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं रिंग होने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा रिंग के डेफिनेशन में मैंने बताया कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से हम अबेलियन ग्रुप चेक कर रहे हैं, और अबेलियन ग्रुप के लिए we will verify closure, associative, identity element, inverse element and commutative property. तो फर्स्ट का कम्यूटेटिव ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं रिंग होने के लिए। अब सेकंड वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो देन दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ कम्यूटेटिव रिंग। ओके, तो हम बात कर रहे थे कम्यूटेटिव रिंग की। तो एनी रिंग विच फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि फर्स्ट के लिए तो हम ऑलरेडी पांचों प्रॉपर्टी चेक कर चुके हैं रिंग होने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने केवल 2 प्रॉपर्टी चेक करी है, क्लोजर और एसोसिएटिव। अब इन 2 के अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव की भी हो जाए, तो देन इट इज कॉल्ड टू बी एज कम्यूटेटिव रिंग। तो देयरफॉर हियर वी आर सेइंग दैट
R plus dot is a commutative ring whenever A dot B is equals to B dot A for all AB belongs to R. ठीक. तीसरा मैं बता रहा था आपको रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स. तो रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या है? तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए जीरो डिवाइजर क्या है. जीरो डिवाइजर का मतलब होता है कोई भी ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स जिनको ऑपरेट करने से रिजल्ट जीरो हो जाए तो उसको हम जीरो डिवाइजर बोलते हैं. ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं. मान लो कोई एलिमेंट ए है जो कि जीरो नहीं है, एक एलिमेंट बी है जो कि जीरो नहीं है. एक मिनट. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो है, बी की वैल्यू नॉन जीरो है और ए को बी से ऑपरेट करने से, ऑपरेशन कौन सा है? सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन. अगर जीरो मिल रहा है तो देन दिस एलिमेंट ए एंड बी इज कॉल्ड टू बी एज जीरो डिवाइजर्स. ठीक है, और किसी रिंग में जीरो डिवाइजर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस रिंग को हम बोल रहे हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, और नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स. गॉट दिस? जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है? सेट आर के कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट जिनको ऑपरेट करने से रिजल्ट जीरो मिलता हो, दे आर कॉल्ड टू बी एज जीरो डिवाइजर्स. ठीक है, और अगर रिंग में जीरो डिवाइजर्स हैं तो उसको हम बोल रहे हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, और नहीं है तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. अगर हम 2 को 3 से ऑपरेट करें और बाइनरी ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, और 6 का मॉड 6 करोगे आप तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो. ऐसे ही 5 इंटू 4 20 होता है, और 20 का मॉड 5 लोगे आप तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो. तो अगर ये कोई रिंग है मान लो जिसमें बाइनरी ऑपरेशन दूसरा वाला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6, तो उसके लिए एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 जीरो डिवाइजर्स कहलाएंगे, क्योंकि 2 और 3 ऐसी नॉन जीरो वैल्यूज हैं जिसको ऑपरेट करने से रिजल्ट जीरो मिल रहा है. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो डिवाइजर्स. तो मैंने आपको ये 3 वेरिएंट्स बताया रिंग के लिए. पहला रिंग विथ जीरो डिवाइजर, एक बताया मैंने आपको रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट या रिंग विथ यूनिटी, और एक बताया मैंने आपको कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग में हमें सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करना है. रिंग विथ यूनिटी या रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, और रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें जीरो डिवाइजर्स हैं. और जीरो डिवाइजर्स वो एलिमेंट होते हैं जो खुद नॉन जीरो होते हैं और उनको ऑपरेट करने से रिजल्ट जीरो आता है. ठीक है, तो ये 3 वेरिएंट्स थे. अब कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिंग की बात कर लेते हैं जिसमें ये दो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. वन इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन एंड द अदर वन इज कॉल्ड फील्ड्स. ठीक है, तो पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं इंटीग्रल डोमेन को. इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन ये है: a commutative ring is an integral domain if R has no zero divisors. What it means? तो इसका मतलब ये है कि एक कम्यूटेटिव रिंग जिसमें क्या हो, दो चीजें हमने ऐड करी, एक तो कम्यूटेटिव होना चाहिए और दूसरा जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए.
अगर रिंग में ये दो एडिशनल प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी? पहला कम्यूटेटिव और दूसरा नो जीरो डिवाइजर्स, तो देन दैट रिंग इज कॉल्ड टू बी एज इंटीग्रल डोमेन। ठीक, रिंग होने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो है ही, इसके अलावा दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे और चेक कर रहे हैं। पहला कि कम्यूटेटिव होना चाहिए और दूसरा कि देर इज नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन मेट आउट हो रही है तो उस रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन बोल रहे हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा था कम्यूटेटिव उसका इंटीग्रल डोमेन का। तो इंटीग्रल डोमेन में हम दो प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। रिंग होने के साथ साथ दो एडिशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला कि वो कम्यूटेटिव है और दूसरा देर इज नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, फिर मैं आपको एक और डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके एक्सप्लेन करता हूं कैसे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो इंटीग्रल डोमेन होता है। सेट ऑफ इंटीजर का मतलब कैपिटल जेड। तो कैपिटल जेड जो है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? तो पहला बाइनरी ऑपरेशन होगा एडिशन का और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो ये एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है कि ये जो सेट है Z6, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? +6 और क्रॉस 6। +6 का मतलब एडिटिव मॉडुलो 6 और क्रॉस 6 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6। और सेट है आपका Z6। Z6 का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। मैं अभी आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इसके बाद पहले मैं आपको एक और डेफिनेशन बता देता हूँ। फील्ड, फील्ड क्या है? तो फील्ड में हम ये देखो क्या क्या चेक कर रहे हैं। एक तो कम्यूटेटिव होना चाहिए, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए इनवर्स होना चाहिए। तो आपको याद होगा रिंग में हमने क्या किया था? सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ केवल दो प्रॉपर्टी चेक किया था, क्लोजर और एसोसिएटिव। अब हमने फील्ड होने के लिए, कोई भी रिंग फील्ड कब होगा? जब इन दो के अलावा तीन और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा। कौन कौन सा? कम्यूटेटिव भी चेक कर लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेक कर लिया और इनवर्स भी चेक कर लिया। यानी अगर हमें किसी अलजेब्रिक सिस्टम को फील्ड प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ
5 प्रॉपर्टी चेक करनी है, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ 5 प्रॉपर्टी चेक करनी है, और सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन को फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है। क्योंकि हमने रिंग में 2 प्रॉपर्टी चेक करी थी और 3 यहाँ पे एडिशनल हो गया, कम्यूटेटिव भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गया और इनवर्स भी आ गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज फील्ड। यहाँ पे अब मैं आपको इस प्रॉब्लम को, इस चीज को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज वी हैव टू प्रूव दैट Z6 + 6 × 6 इज अ रिंग बट नॉट ए फील्ड। ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, ये फील्ड भी नहीं है, लेकिन ये रिंग है। हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द टेबल, कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सेट जो है वो क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट जब भी होता है तो हम उसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लेट मी डू दिस। एलिमेंट है 0, Z6 का मतलब है द सेट हैविंग एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5, क्योंकि किसी भी इंटीजर को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक हो सकती है। 3 4 और 5 यही रो में ले लिया, 0 1 2 3 4 और 5। और बाइनरी ऑपरेशन है आपका पहला वाला +6। +6 का मतलब होता है एडिटिव मॉडुलो 6, और एडिटिव मॉडुलो 6 का मतलब एडिशन फॉलोड बाय मॉड 6। तो चलो फिलअप करो टेबल को। ये 0 हो गया, ये 1, 0 + 2 2 3 4 5। 1 के लिए 1 + 0 1, 1 + 1 2 3 4 5, और 1 + 5 6, और 6 mod 6 0। ठीक है, ऐसे ही 2 3 4 5 0, 2 + 5 7, यानी कि रिमाइंडर 1। फिर 3 के लिए 3 4 5 6 यानी कि 0, 7 यानी 1, 8 यानी 2। 8 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 2। फिर 4 के लिए लिख लो, तो ये हो गया 4 5 0 1
2 3, 5 के लिए 5 0, 7 यानी 1, 8 यानी 2, 9 यानी 3 और 10 यानी 4। ये टेबल अगर किसी को समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। गॉट दिस? वी हैव टू डू एडिशन फॉलोड बाय mod 6। ठीक, तो ये टेबल बन गया। अब इस टेबल से मैंने आपको बताया था रिंग प्रूफ करने के लिए हमें ये शो करना होता है फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप के लिए आप 5 प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हो: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले हम बात करते हैं क्लोजर की। देखो, इस टेबल में जितने भी रिजल्ट्स हमने लिखे हैं वो सभी क्या हैं? सेट Z6 के एलिमेंट, 0 1 2 3 4 5। इन 6 के अलावा कोई सेवेंथ वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। पहला रो जो है वो क्या है? 0 1 2 3 4 5, और फर्स्ट कॉलम क्या है? 0 1 2 3 4 5। सेकेंड रो इज 1 2 3 4 5 0, सेकेंड कॉलम इज 1 2 3 4 5 0, थर्ड रो इज 2 3 4 5 0 1, यहां देखो आप, और थर्ड कॉलम इज 2 3 4 5 0 1, फोर्थ रो 3 4 5 0 1 2, और 3 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, 4 5 0 1 2 3, 5 0 1 2 3 4, 5 0 1 2 3 4. So therefore each row is identical to respective column, therefore it follows commutative property. तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो डायगोनल पैलिंड्रोम से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो, चलो चेक करो जरा इसको डायगोनल पैलिंड्रोम के लिए। तो लेट मी डू दिस। 0 0 पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब इधर से रीड करोगे तो भी 0 0 है, इधर से रीड करोगे तो भी 0 0। 1 0 1 पैलिंड्रोम, 2 1 1 2 पैलिंड्रोम, 3 ट्रिपल 2 3, 4 4 times 3 4, 5 5 times 4 5, 5 times 5 6 times 5 palindrome, 5 times 0 palindrome, 4 times 1 palindrome, 3 times 2 palindrome, double 3 palindrome. So we have verified that all the diagonal entries are palindrome. Therefore, it follows associative property. हमने क्लोजर वेरीफाई किया, कम्यूटेटिव वेरीफाई कर लिया, एसोसिएटिव वेरीफाई कर लिया। टेल मी व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस? Yes, any one of you? What is the identity element? Anyone? Sir, 0. Yes, Sejal, you are correct. The identity element will be 0, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, इस टेबल के अकॉर्डिंग 0 ऐसा एलिमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग जो रो है वो टॉप रो से मैच कर रहा है। टॉप रो यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो हमें वो एलिमेंट देखना है जिसके करस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू क्या हो? 0 1 2 3 4 5, एंड दैट इज एलिमेंट 0। तो देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इनवर्स कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है,
यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। ठीक है, तो इसलिए अब इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि 0 का इनवर्स क्या है, 0, क्योंकि 0 और 0 के इंटरसेक्शन पे 0 लिखा हुआ है। 1 का इनवर्स क्या है, 5, क्योंकि 1 और 5 के इंटरसेक्शन पे 0 है। 2 का इनवर्स क्या है, 4, क्योंकि 2 और 4 के नीचे 0 लिखा हुआ है। 3 का इनवर्स क्या है, 3। 4 का इनवर्स क्या है, 2। 5 का इनवर्स क्या है, 1। 5 का इनवर्स 1 होने का मतलब ये है, 5 का इनवर्स 1 क्यों है, क्योंकि 5 एडिटिव मॉडुलो 6 1, इसकी वैल्यू 0 है। मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स बी होगा जब ए स्टार बी की वैल्यू ई हो जाए। तो 5 का इनवर्स 1 होगा जब 5 मॉडुलो 6 1 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमने पांचों प्रॉपर्टी चेक कर लिया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया, कौन सा, कि Z6 + 6 यानी कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ Z6 अबेलियन ग्रुप है। ओके, अब हम दूसरा कंडीशन वेरीफाई करते हैं सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए। जरा हम इसका टेबल बना लें पहले सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ड्रॉ हियर। Again, the elements are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 0, 1, ये स्लाइड में भी है लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ सो दैट इट मस्ट बी क्लियर, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो आप कोई सा भी प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखा होगा तो वो आपको समझ नहीं आएगा कैसे लिखा है ये। और क्रॉस 6 बाइनरी ऑपरेशन है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6। मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6 का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय मॉड 6। चलो जल्दी जल्दी करो, ये हो गया 0, 0, 0, 0, 0, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1 से मल्टीप्लाई करो, 1, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज 0, इट इज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 0, क्योंकि 6 मॉड 6 क्या होता है, 0। 2 4 जा 8 यानी 2, 2 5 जा 10 यानी 4, 2 5 जा 10 एंड डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर 4। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करो, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 20 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर 2। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। डन। तो ये आपका टेबल हो गया। इस टेबल को देख के आपको दो प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्योंकि हम सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप देख रहे हैं, और सेमी ग्रुप का मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इस टेबल की जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 1 2 3 4 5, इन 6 के अलावा कोई सेवेंथ वैल्यू हमने यूज नहीं किया है। देखो कहीं पे भी
इन 6 के अलावा कोई 7वां एलिमेंट यूज नहीं हो रहा है, 0 से 5 तक। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव के लिए मैंने बताया था कि पहले हम चेक कर लें आइडेंटिटी, सॉरी सॉरी कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, जरा देखो पहले। रो और कॉलम, पहला रो पहला कॉलम सेम, दूसरा रो दूसरा कॉलम सेम, तीसरा रो क्या है 024 024, तीसरा कॉलम 024 024, चौथा रो 030 303 030 303, 042 042 042 042, 054 321 054 321. Each row is identical to respective column. Therefore, it follows commutative property, और commutative property है तो diagonal palindrome से हम एसोसिएटिव वेरीफाई कर सकते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। 00 101 2002 30103 402 204 503 4305 04004 52325 4004 34322। तो इट इज डायगोनली पैलिंड्रोम। ये लाइन मैं खींच के केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो वी हैव वेरीफाइड दैट इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये क्या है, सेमी ग्रुप है। तीसरा कंडीशन है कि सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन जो है फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आप किसी भी 3 एलिमेंट के लिए वेरीफाई कर सकते हो कि अगर हम ये कैलकुलेट करें a क्रॉस 6 b प्लस 6 c, तो ये क्वांटिटी जो होगी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू a क्रॉस 6 b और प्लस 6 a क्रॉस 6 c। You can verify for any 3 elements a, b and c, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन भी हो गया, एंड देयरफॉर इट इज अ रिंग, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप, और सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। तो देयरफॉर Z6 प्लस 6 क्रॉस 6 इज अ व्हाट, रिंग। अब इंटीग्रल डोमेन ये नहीं है, क्यों नहीं है? तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो क्या इसमें जीरो डिवाइजर है? एनीवन? कम्यूटेटिव रिंग तो है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं वेरीफाई करके दिखा चुका हूं आपको सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव रिंग तो है, लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है? यानी कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको ऑपरेट करने से रिजल्ट जीरो मिलता हो? यस, ऑब्वियसली। देखो यहां पे आपको जीरो मिल रहा है, किसको किसको ऑपरेट करने से? 2 और 3 को। 2 और 3 नॉन जीरो वैल्यूज हैं जिसको ऑपरेट करने से जीरो मिल रहा है, इसलिए 2 और 3 जीरो डिवाइजर्स हो गए। ऐसे ही यहां पे आपको जीरो मिल रहा है, किससे? 3 और 3 को ऑपरेट करने से, तो इसलिए 3 इसका जीरो डिवाइजर हो गया। सॉरी, 3 और 2 को, ठीक है। तो 2 और 3 इसके जीरो डिवाइजर हो गए। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे जीरो मिल रहा है 4 और 3 को ऑपरेट करने से, तो इसलिए 3 और 4 इसके जीरो डिवाइजर हो गए। यहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है किससे? 3 और 4 को ऑपरेट करने से। तो इसलिए इस अल्जेब्रिक सिस्टम के लिए 2 3 4 ये 3 एलिमेंट इसके जीरो डिवाइजर्स हैं।
2, 3 और 4 ये तीनों एलिमेंट इसके क्या है, जीरो डिवाइजर। और सर क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रल कॉलम डोमेन में सर क्या, फर्स्ट कॉलम में जो 0 है वो काउंट नहीं होंगे, फर्स्ट रो नहीं में भी? मैंने क्या बताया जीरो डिवाइजर के डेफिनेशन में, कि ऐसे एलिमेंट जो कि खुद नॉन जीरो हों, ठीक है। तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में हम एलिमेंट ही जीरो ले रहे हैं ना, हमें नॉन जीरो एलिमेंट लेना है जिसको ऑपरेट करने से रिजल्ट जीरो आता हो। ओके सर। ओके, ओके तो इसलिए मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि फर्स्ट रो जीरो इसलिए है क्योंकि जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम इसलिए जीरो है क्योंकि एक ऑपरेंड ही जीरो है आपका। ठीक है, हमें जो भी नंबर लेना है वो खुद नॉन जीरो होना चाहिए और रिजल्ट जो है जीरो आना चाहिए। ठीक, तो दैट्स वाई हियर 2, 3 and 4, these three are the zero divisors of this ring, and therefore this is an example of ring with zero divisors। और इंटीग्रल डोमेन होने के लिए हमें चाहिए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। दैट्स व्हाई दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग, दिस इज अ रिंग विथ जीरो डिवाइजर, बट दिस इज नॉट अ व्हाट, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ओके, फिर हम आते हैं, क्या ये रिंग विथ यूनिटी है, यानी कि क्या सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, और है तो क्या है, तो दिस इज 1, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग जो रो है वो इस टॉप रो से मैच कर रहा है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और कहीं पे नहीं है 0 1 2 3 4 5। तो इसलिए ये इसका 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। दैट्स वाई मैंने जो जो चीजें बताई थी आप इसको रिलेट कर सकते हो, रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग विथ आइडेंटिटी है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों नहीं है इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक, फील्ड, फील्ड भी नहीं है, क्योंकि फील्ड होने के लिए हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ट्रू है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये भी है, लेकिन जो तीसरा है, तीसरा कंडीशन क्या था, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स के लिए मैंने क्या मेथड बताया था आपको, कि आप जो है क्या करो, आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क कर लो। तो अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क करेंगे तो 1 का इनवर्स 1 हो गया, 5 का इनवर्स 5 हो गया, लेकिन 2, 3 और 4 इन तीनों ही एलिमेंट का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 2, 3 और 4 तीनों के रो में कहीं भी 1 नहीं आ रहा। इनवर्स कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट मार्क करते हैं। 2, 3 और 4 तीनों ही रो में कहीं भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो प्रॉपर्टी थी कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट हैव इट्स इनवर्स, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और इस वजह से ये फील्ड नहीं होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रू है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये ट्रू नहीं है, इस वजह से ये फील्ड नहीं है। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट ग्रुप थ्योरी। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ग्राफ थ्योरी। Anyone having confusion, any questions you can ask up to now? Any questions, any queries? Okay, that's all. Thank you. We'll meet again in the next class with the new topic, that is graph theory. आप सभी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। थैंक यू।